shut up. Let me sleep. I slept late at night. Okay. Hey mom, what's up? And where are you going, beta? I'm going to receive my food that I have ordered. And what about the food that I made? You enjoy yourself. Beta, at least sit properly and have your food. Don't disturb me every time. Let me have my food peacefully. Oof. What has happened to today's generation? Why don't they listen to their parents? Scene 2. Rohit is married to Aura. Beta, can you give me a glass of water? Don't disturb me now. Help yourself. Good evening, dear. What's so good about the evening? What's wrong with you? Rohit, you really need to figure out. I can't get along with your mother. Either she will stay or me in this house. You better decide and let me know. Don't spoil your mood. I will do something. Then do something. What has happened, my child? No, mom, nothing. Sit on the chair. I will give you a glass of water. No, mom, it's okay. Mom, let's go for a walk. A walk? With your mother? After these so many years? Beta, just wait here. I will come in a few minutes. Scene 3. In the old age home. Good evening, sir. Good evening, ma'am. How can I help you? Good evening. So, she is my mother. Please take good care of her. Good care? I mean, it is your new home. You have to live here only. I will come and meet you every month. Welcome, Sohaniji. Don't worry. You will have many friends here. Meanwhile, now Rohit starts living with his wife and son Ans. Sohaniji, what happened? Are you okay? Yes, I am. I want to talk to my child. Hello? Hello? Mr. Rohit? Yes? Your mom's health is getting deteriorated day by day, so please come and visit her. There? Well, I am running very busy nowadays. Can I just talk to her? Yes, sir. How are you, my child? I am fine. What's wrong with your health, mom? Nothing at all. Can you just do me a favor? What favor? Beta, please give me a wheelchair, a water purifier and a AC. Okay, the list is so long, but I will send them soon. Thank you, beta. Scene 4. After a few years in the house. Hey dad, what's up? All good, child. Dad, I actually wanted to have a word with you. What is that? Don't you think the time has come when we should get separated? What do you mean? I have informed the old age home about you. So pack your bags, I'll be dropping you in the evening. And don't worry, I'll come to meet you every third month. Scene 5. In the old age home. Welcome, Mr. Rohit. Your room is ready, and thanks to your mother who has taken care of all your requirements. My mother? Yes, you remember the last time when she called and asked for all those electronics. Now, have a good day, sir. And don't worry, you will have many friends here. Someone rightly said, our home is our first school. So, we should be careful what we are inculcating to our child. That's all. Thank you. एक बेहद खास अवसर पर 75वां गणतंत्र दिवस मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सबसे पहले मैं देश की प्रगति में योगदान देने वाले प्रत्येक नागरिक की सराहना करती हूँ। भारत की संस्कृति और सभ्यता के अग्रदूत प्रवासी भारतीयों का भी मैं अभिवादन करती हूँ।
इस खास अवसर पर मैं विशेष रूप से उन बहादुर सेनाओं की सराहना करती हूँ जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं तथा किसी भी त्याग या बलिदान के लिए सदैव तैयार रहते हैं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं बल्कि गौरव और सम्मान है। यह हर भारतीय का अभिमान है। अनगिनत देशवासियों की कुर्बानी के बाद भारत माँ को 15 अगस्त 1947 में आज़ादी मिली थी, लेकिन इसे गणतंत्र का आकार 26 जनवरी 1950 को मिला क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। भारतीय संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसे बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को हमारे संविधान का जनक माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की आहुति दी जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी को कोई संघर्ष ना करना पड़े और हम अपने देश को आगे लेकर जा सकें। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए बहुत संघर्ष किया है। अपने देश के लिए इनके समर्पण को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। हमें एक भारतीय नागरिक के रूप में अपने देश को आगे ले जाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करने चाहिए। असफलता, बेरोजगारी और शिक्षा जैसे सामाजिक मुद्दों पे हमें अपना योगदान देना चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर तिरंगा फहराया जाता है और राष्ट्रगान गाया जाता है। उसके बाद 21 तोपों की सलामी दी जाती है और हमारी भारतीय सेना शक्ति प्रदर्शन और परेड करती है। अंत में मैं इन शब्दों से अपने भाषण को विराम देती हूँ। आज़ादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे, बची है जो बूंद लहू की तब तक भारत माँ का अंचल नीलाम न होने देंगे। जय हिंद, जय भारत। The golden words. Now we present before you Hindi skit by the students of our school. Please give them a huge round of applause. ओह, ये क्या? पिछले साल की तरह इस साल भी मेरे खेतों में अच्छी फसल नहीं आई। क्या हुआ भाई, इतने दुखी लग रहे हो? पिछले साल की तरह इस साल भी मेरे खेतों में अच्छी फसल नहीं आई। लगता है तुम अपने खेतों में रासायनिक खाद नहीं डालते हो। रुको, मैं तुम्हें एक खाद देता हूँ। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। मैं जल रही हूँ, मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ, मुझे बचाओ। क्या आप सब जानते हैं कि इन रसायनों से मेरी मिट्टी ठीक वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे। लगता है मेरे बच्चों को मेरे दो का अंदाजा ही नहीं है। मैं हजारों सालों से आप सभी का अपने बच्चों की तरह पालन पोषण करते आ रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप सब नहीं थे और मैं तब भी रहूंगी जब आप सब नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं थक रही हूँ। आपकी धरती माँ थक रही है। रासायनिक खादों का छिड़काव, रासायनिक खाद और इन सब के कारण वायु एवं जल में जहरीलापन, यही कारण है कि मैं थक रही हूँ। लेकिन अब मुझे याद आता है कि पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी, हमेशा हंसती रहती थी, क्योंकि पहले आप सभी तो मेरी रखवाली किया करते थे। आप सब प्राकृतिक खेती करते थे जिससे मेरी मिट्टी हमेशा उपजाऊ बनी रहती थी। और हमारे सभ्यता में भी तो प्रार्थना
धरती के कल्याण की ही है। ओम द शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषध शांति, वनस्पति शांति। ओम शांति शांति शांति। नदियाँ जंगल झरने पर्वत रखना इन्हें संवार के, इनको रौंदा तुम न बचोगे धरती कहे पुकार के। बेमौसम की वर्षा होती कहीं पे मिट्टी बंजर बनती, बंजर मिट्टी और भी तपती धरती कहे पुकार के। हजारों सालों से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है, पर अब ऐसा लगता है कि उसे अपने बच्चों की चिंता ही नहीं है। क्या आप सब अपने बच्चों को बंजर खेत देना चाहते हैं? मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने मुझे क्या दिया?